My question now is to Miss Burak Shabir. Ma'am, you are culture and lifestyle journalist. तो मैम मुझे बताएगा, सिंस जब भी हम बात करते हैं ना ग्रीन आर्किटेक्चर की, तो ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी अभी तक भी बहुत ही कूल टर्म है, बिकॉज हम कम्प्लीटली तो इसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर सके ना, अभी तक हम ग्रीन आर्किटेक्चर पे नहीं गए, तो हम इनोवेशन की तो अभी बात भी नहीं कर सकते. तो मैम जब आप रिपोर्ट कर रही होती हैं, तो क्या आपको लगता है कि अभी भी वो हम 10 साल से वो एक ही बात कोट कर रहे हैं, या हमारे रीडर्स अब कुछ न्यू जानना चाह रहे हैं इस बारे में? So I won't be able to face you because of the direction. Okay. Assalamu alaikum everyone. शायद आप सब भी सोच रहे हैं और मैं खुद भी ये सोच रही थी कि being a culture and lifestyle journalist, how eligible I am to talk about this. But fortunately, I have been able to work on a few stories around environment-friendly initiatives and sustainability. So whatever little information and actually doing something about it. हम सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस, सस्टेनेबिलिटी, लाइक ये तीनों वर्ड्स जितने ज़्यादा अच्छे साउंड कर रहे हैं उतना ज़्यादा डीप रूटेड ये मसाइल हैं जिनको सोल्यूशन की ज़रूरत है. बट आई फील कि क्योंकि ये यूनिवर्सल चैलेंजेस हैं, यूनिवर्सली इंटरनेशनली इट्स वेरी गुड टू सेल दीज थिंग्स. आई फील स्पेशली अगर मैं कमर्शियल एस्पेक्ट्स की बात करूँ, सो अ लॉट ऑफ पीपल incorporate some initiative. I'm not saying they don't do anything, but my problem or question as a journalist is mostly they are one-off. एक initiative किसी ने लिया, we went there, we reported on it, we appreciated it, everyone is like amazing, they came up with this thing. For instance, I did this story on a road that was made using plastics. A petroleum company decided कि उनकी इतनी ज़्यादा plastic bottles या जो भी उनका plastic waste है उसको they wanted to put to some good use and they made a road out of it, which is again a great initiative. And I appreciate that they told me कि they may not be doing it again, but they just wanted to do it and show the world कि जो ये कर सकता है उसको मज़ीद ऐसा करना चाहिए. However, when I spoke to environment activists, they were like कि it may not be as sustainable, as good, because फिर उसके दूसरे downsides हैं. But still we need to appreciate the initiatives. थोड़ा सा downsides को मद्देनज़र रखते हुए, अगर प्लास्टिक से जो harm हो रहा है उससे अगर कम harm इस रोड के बनने से हो रहा है तो there is no harm, I would say. But 10 साल से या जितने भी सालों से आपने कहा कि क्या अभी भी हम ये टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, आई वुड नॉट कम्प्लीटली अग्री, बिकॉज पिछले कुछ सालों से आई एम एक्चुअली सीइंग अगेन दीज इनिशिएटिव्स दैट पीपल आर at least trying to do something about it, especially the younger lot. The youth is more vocal about it. They are coming out more often. Rallies, protest हम लोग अगर कुछ arrange करते हैं जिसमें civil societies हैं, NGOs हैं, activists हैं, like it's not just government or it's not just organizations or bigger companies. It's also the youngsters, it's also the civil society, like civil servants, who, however you would like to put it, which I think is a very positive change, is a very welcome change, and that should give us hope that even though हम compared to the rest of the world, we are moving at a slow pace, but अगर आप हमारे panelists को ही देख लें, so everyone is working in this direction, and I'm sure they are just like very few names, and there must be more people out there. So the appreciation lies at the attempt to make a change, and I think that's going to bring the change. मैम आप सिंस आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, तो जर्नलिस्ट बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो और सिंस आप कल्चर एंड लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट हैं तो आपका सेंसिटिविटी का जो स्केल है वो और ज़्यादा हाई होगा. तो मैम आप क्या सोसाइटी में एक फील करती हैं कि जो हमारे जो मैसेस का रिएक्शन है व्हेन इट कम्स टू ग्रीन लिविंग, हाउ दे फील अबाउट इट? यानी कि हम ये देखते हैं कि कल्चर, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं ना ग्रीन लिविंग का, इसका हमारे कल्चर और बिहेवियर से बहुत ज़्यादा ये लिंक्ड है. तो आप क्या देखती हैं जब आप इस पर काम कर रही होती हैं, बोल रही होती हैं, तो फीडबैक कैसा आता है मैसेस का? डू दे अप्रिशिएट इट और आर दे लाइक कि बस ठीक है, हो रहा है तो होता रहेगा? Thank you. Okay, so again, as much as we appreciate the initiatives, people appreciate the reports we make on these initiatives कि ऐसा काम हो रहा है, वैसा काम हो रहा है. But जैसे I think सब लोग point out कर चुके हैं, and without, like I've tried not to repeat what everyone else has said, I think lifestyle change की जो बात है, वो बहुत basic चीज़ है, बहुत ज़्यादा important है, जो जहाँ से start किया
उन्होंने कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी है, बिकॉज अगर वो अप्रूवल्स नहीं होंगे, रिसोर्सेज नहीं होंगे, सारी चीज़ें नहीं होंगी तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम एज इन दीज पीपल हु आर ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस। लेकिन हम अगर आवाम की बात करें, सो वेरी इजीली वी पुट एवरीथिंग ऑन समवन एल्स रादर देन आवरसेल्व्स। अब वो गवर्नमेंट तो बिल्कुल एक अपर लेवल है, बट हर तरह से हमें ये है कि हाँ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट कौन करेगा? द सैडेस्ट थिंग विच आई फील दीज डेज ज़्यादा इन पाकिस्तान है इसके हर किसी को लगता है कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता, यहाँ तो कोई चेंज आ ही नहीं सकता, सो वाई इवन बॉदर। सो अगर हर कोई यही सोचेगा, लिटरली हर कोई यही सोचेगा, सो एक्चुअली गवर्नमेंट ने अगर किसी दिन उठ के कर भी दिया हमारे लिए कुछ, तो भी इट वोंट बी एबल टू सस्टेन, बिकॉज इट्स द पीपल इवेंचुअली। आई एम नॉट एट ऑल टेकिंग द गवर्नमेंट साइड हियर, बट आई एम ट्राइंग टू से कि हम सब जितने लोग इस वक्त इस कमरे में हैं और इससे कई गुना ज़्यादा लोग इस शहर में और इस मुल्क में हैं, lifestyle changes is the key to actually a sustainable future, especially in a country like Pakistan, जहाँ पे already there is so much limitations and restrictions and we are bound from a lot of ends. वहाँ पर ये छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे आपने आई एम फॉरगेटिंग एग्जैक्टली किसने पॉइंट आउट किया, शायद वजीहा ने, कि ये जो 25 से ऊपर का ब्रैकेट है, इंक्लूडिंग आवर सेल्व्स, आई एज्यूम वी ऑल आर अबव 25, सॉरी इफ एनीवन इज लेस, बट हमें ये पानी की बॉटल ख़रीदना ज़्यादा आसान लगेगा, कचरा खुद फेंकना तो पता नहीं लास्ट टाइम कब हम जाके फेंकेंगे अगर एक दिन हमारा स्वीपर या हमारा वो नहीं आता जमादार। देन सेपरेटिंग सॉलिड वेस्ट फ्रॉम लिक्विड वेस्ट, मतलब दिस इज़ द लास्ट थिंग आई वुड वांट टू डू, लेट मी एडमिट दैट। सो ये चीज़ों के साथ साथ अगर हम बात करें, सो नेचर के साथ एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और हेल्दी ताल्लुक़ बनाने की ज़रूरत है, जिसके लिए जो बेसिक एलिमेंट है दैट्स पोल्यूशन। और एक, क्योंकि इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ स्टोरी आई वर्कड ऑन, कि सिंध गवर्नमेंट ने अपेरेंटली इलेक्ट्रिक ईवी बसेस का लॉन्च किया। अगेन जो मैं बात कर रही हूँ, दिस अप्लाइज हियर एज वेल, कि 4-6 बसेस कराची का कुछ नहीं फ़ायदा हो सकता, बट अगेन द इनिशिएटिव एंड द मल्टीप्लिकेशन इज़ द की। सो अगर ऐसे व्हीकल्स हैं, रादर देन एन इंडिविजुअल हैविंग अ कार जो कि मतलब जो इलेक्ट्रिक उससे चलती है और उसमें फ्यूल का इस्तेमाल नहीं है, उससे ज़्यादा हमें ब्रॉडर लेवल पे ज़रूरत है अगर बसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज अगेन प्रिविलेज हमारा इजाज़त हमें नहीं देगा, लेकिन फॉर द इन्वायरमेंट इट्स बेटर टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट देन हैविंग योर लाइक यूजिंग योर ओन कार। लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली प्रिविलेज लोगों को इतना ज़्यादा अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा कि वो अपनी गाड़ी छोड़ के उस बस में आ सकें। आई डिड कम्यूट इन दैट बस फॉर द स्टोरी, बिकॉज मैंने वो बस के अंदर ही शूट की थी। सो मतलब इट्स नॉट लाइक आई हैव नेवर ट्रेवल्ड इन अ बस बिफोर, बट अभी इट्स बिन अ वाइल। सो उस बस में मुझे लगा कि अगर ऐसी बस हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं बस ले लूँ, बिकॉज उसमें एसी था, ठीक है, और उसमें आराम से सीटिंग अरेंजमेंट था, उसके गेट्स आराम से वो रुकेगी, खुलेंगे ऑटोमेटिक, ना मैं गिर रही हूँ ना मैं गेट पर खड़ी हुई हूँ। सो अगर ऐसी बसेज हैं या ऐसी सहूलियात हैं जिसमें अगेन गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम्स इन, सो नॉट एवरी वन बट मोस्ट ऑफ अस वुडंट माइंड, बिकॉज अगेन इट वुड सेव आर मनी। जहाँ पे आपने आपका पहला सवाल जब ये सेकेंड राउंड में शुरू हुआ कि पैसे की और रिसोर्सेज की बात हम करें, सो उसमें यही है कि अगर ये लार्जर स्केल पे जब ये इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे तो इवेंचुअली द कॉस्ट विल कट। अभी ऐसा होता है कि एक आपने एकदम से इनिशिएटिव किया है, एक स्टेप लिया है, उसमें इतना पैसा लग गया, तो उसकी कैलकुलेशन आप इस तरह देखेंगे तो इट वुड बी अ लॉट, एंड देन यही होगा कि पाकिस्तान में ये कहाँ हो सकता है। इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि 80 करोड़, ऑल्दो इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट कि 80 करोड़ की चीज़ अगर हम 6 करोड़ में बना सकते हैं तो हम उन्हें बेचना शुरू कर देते हैं जिन्हें 80 करोड़ में जो लोग बना रहे हैं। बिकॉज मैंने एक स्टोरी की जो कि इन्वायरमेंट सेंट्रिक नहीं थी, बट इट वॉज ऑन द स्वीपर्स एक्चुअली, कि वो जब जाकर सफाई करते तो इट्स वेरी हार्मफुल फॉर देयर लाइफ, इट्स एक्चुअली लाइफ थ्रेटनिंग। सो उस स्टोरी में उन्होंने एक मशीन बनाया कि उनको ना जाना पड़े, वो मशीन अपना काम कर सके। सो उनका मोटिव भी यही था कि बाहर से वो मशीन हम नहीं अफोर्ड कर सकते थे, तो हमने पाकिस्तान में अवेलेबल चीज़ों से वो बनाया, एंड नाउ वी कैन मल्टीप्लाई एंड इवेंचुअली दे कैन प्रोवाइड इट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो यू नो, diversifying the opportunities and in cashing those मतलब अगर आप ये मशीन प्रोवाइड कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड, एंड इफ़ यू आर मेकिंग इट इन अ वे लेस अमाउंट देन इट्स बीइंग अवेलेबल इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो आप उस रिसोर्स को फिर अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड बट अगेन आई थिंक इट बिगिंस एट होम एंड दैट शुड बी द की।